Now, in this class, we discuss one homework question which I gave you for solving it. I hope you all are solve it. But if anyone that cannot be solved that question, this is the question, and I told you how to solve this concept. Students, for this question, firstly we have to know the expansion of determinant. How do we expand the determinant, and after seeing that we are able to differentiate it. So students, see that there is a function y equals to fx gx hx lmn abc. So firstly you have to know how we expand it. So students, you have to write here, since we know that we know that since we know that if a is any determinant value which is written like that, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, so how you have to expand it? So students, firstly we take a1, then we remove we left the first column and first row. What you have? B2 C3 and B3 C2. So you have to multiply it, B2 C3 minus B3 C2. Then second, minus B1. For minus B1, you have to left the second column and first row. So what you get? A2 C3 and A3 C2. A2 C3 minus A3 C2, and third one C1. So according to this, we left third column and first row. We have to multiply A2 B3 minus A3 B2. A2 B3 minus A3 B2. So students, this is the expansion of any determinant value. You have to take a elements of first row, and according to that element you have to left out the column and the row. Okay students, and the left element is cross multiplied by taking a minus sign. So students, in this way we can write that y equals to, so a1 b1 c1 fx gx hx. So fx, and students, B2 C3. B2 means that, and C3, that is M into C, MC, minus B3 C2, B into N, minus B1, that is GX. A2. A2 means what? L, C, minus A, N. And third one C1. C1 there means HX. And according to that, LB minus AM. Okay students, so you know this is the variable which depends on x, and this is constant. So in last class we discussed a formula. If you have any function which depends on x and there is a constant with that function, then on differentiating we we take outside the constant function and we differentiate the variable. मीन्स आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट होंगे उनको आउटसाइड कर दोगे डेरिवेटिव के, और आप जो वेरिएबल होंगे उनको डेरिवेट करोगे. सेशंस ये कांस्टेंट है, इनको बाहर करोगे, सो dy dx जब आप करोगे dy dx, सो व्हाट यू गेट, दिस इज अ कांस्टेंट, सो mc माइनस bn, ये आउटसाइड हो गया, और आप इसको डेरिवेटिव इसका लोगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स. ऐसे स्टूडेंट्स ये आउटसाइड हो जाएगा एल सी माइनस ए एन एंड डी डी एक्स ऑफ जी एक्स. एंड थर्ड स्टूडेंट्स
इसको आउटसाइड किया, एल बी माइनस ए एम डी डी एक्स ऑफ एच एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ये x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करना है, इसको भी, तो हम सीधे सीधे इस पे डैश लगा देंगे। डैश इज द साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन लाइक दिस। सो यू हैव टू राइट mc माइनस bn f dash x प्लस माइनस lc माइनस an g dash x and plus lb minus am into h dash x। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ये सेम टाइप का यही एक्सपेंशन है, बस फर्क क्या है कि fx की जगह पे f डैश आ गया, gx की जगह पे g डैश आ गया और hx की जगह पे h डैश आ गया, और कोई चेंजेस नहीं है। तो आप इसको फिर से इस फॉर्म में लिख सकते हो, यानी आप इसको लिख सकते हो बच्चों क्या, f डैश x g dash x h dash x and same l m n a b c, और यही बच्चों आपको प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था, वो भी था डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। आप डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जानते हो, उसको एक्सपेंड कर लिया, कांस्टेंट को बाहर किया और जो वेरिएबल है उनको डिफरेंशिएट कर दिया। So this is the solution of last homework question. Now, स्टूडेंट्स, हमने सिंपल फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने सीखे थे। अब हम सीखेंगे कि कैसे कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिशन लास्ट जब हम इनिशिएट किया था हमने कंटिन्यूटी के साथ, तो मैंने आपको वहाँ कंपोजिशन बताया था। जैसे एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, तो कंपोजिशन मीन्स फॉग, FOG फॉग मीन्स f of gx, यानी अब आपको ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जिसमें आपको एक से अधिक फंक्शन एक साथ दिए होंगे और उनका डेरिवेटिव आपको निकालना होगा। सो वी डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी टेक अ एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल, सपोज दैट एग्जांपल हमने लिया sin x स्क्वायर प्लस 5। बच्चों आप देख सकते हो कि एक साइन का फंक्शन है और एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यहाँ दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन हैं। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल मीन्स आपको जो दो फंक्शन है उनको कुछ सपोज करना होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी हैव टू सपोज लेट y इक्वल्स टू साइन u। मान लिया साइन u है, इसको आप लिखोगे फाइंड dy dx, ये आपको फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव निकालना है। y इक्वल्स टू साइन u, बट हियर इज नॉट u, मीन्स u की जगह पे क्या लिखा है हमने, वेयर u किसकी जगह पे है, वेयर u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चों आपको क्या चाहिए, dy dx। सो हाउ यू फाइंड इट, सो dy dx को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, dy by du into du dx। क्या ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से ये फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है और आपको dy dx मिल जाएगा, नो चेंज। अब बच्चों हम क्या करते हैं, d of du, y क्या है बच्चों, साइन u, तो y की जगह पे साइन u रख दिया, इंटू d of dx एंड u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेशन साइन का डेरिवेटिव मैंने बताया था कल लास्ट क्लास में, cos। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos u इंटू x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स हमने x पावर n का डेरिवेटिव पढ़ा था, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, यानी जो पावर होता है वो साइड में आता है और x पे एक रिड्यूस हो जाता है पावर। सो यहाँ 2 है तो ये 2 साइड में आ जाएगा और x पे एक रिड्यूस होगा तो पावर 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बताया था क्या, 0।
सो इससे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या बन गया बच्चों, 2x cos u की जगह पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। एक और एग्जांपल लेता है, आई होप इससे अगर नहीं समझ में आएगा तो आप उस एग्जांपल से समझ जाओगे। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर 3x प्लस 2। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स ये भी वही है, देखो दो फंक्शन है, एक ये है और एक साइन है, यानी कंपोजिशन है फंक्शन का। यहां भी हम वही काम करेंगे। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, लेट y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर u। अब ऐसे कर लो बच्चों, ऐसे कर लो, y इक्वल्स टू, लेट y इक्वल्स टू t स्क्वायर, y इक्वल्स टू t स्क्वायर, वेयर t क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर u, और साइन स्क्वायर u क्या है बच्चों, एंड u क्या है 3x प्लस 2। देखो यहां बच्चों तीन फंक्शन के कंपोजिशन है, एक तो साइन है जिसको मैंने t सपोज किया, फिर t साइन को t के फॉर्म में एंड x को u के फॉर्म में, यानी y मिला, t मिला और u मिला। इस फॉर्म में आपको फंक्शन के मिल गए। अब इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये समझ में आया बच्चों। t साइन स्क्वायर की जगह पे मैंने t रखा, साइन की जगह पे t रखा, यहां से लिख लो t साइन की जगह पे बच्चों। सो dy dx कैसे लिखोगे बच्चों, d ऑफ पहला फंक्शन क्या है t, dy dt इंटू दूसरा क्या है बच्चों u, तीसरा u किसका फंक्शन है, x का। समझ में आ रही बात, y t का फंक्शन, t u का फंक्शन एंड u x का फंक्शन। हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब बच्चों हम वैल्यूज रखेंगे, डी टी टी, वाई क्या बच्चों टी स्क्वायर, डी डी यू, यू क्या, टी क्या बच्चों साइन यू, एंड डी डी एक्स, यू क्या बच्चों 3x plus 2. So you see here, I put all the values of y, t and u. Now we differentiate it. t square, अभी देखा x square 2x, तो t square 2t. अभी देखा साइन का क्या होता है cos, so it becomes cos u. 3x, x का 1, so बचा क्या 3 और 2 का 0, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. Now students, 2 t की वैल्यू क्या है बच्चों साइन u, और ये क्या है बच्चों cos u, एंड 2 क्या है बच्चों 3. अब स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में आप 11th में फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 sin u cos u. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस 2 sin u cos u, sin 2u, sin 2u, so it becomes sin 2u into 3. अब ये बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये मल्टीप्लायर है और ये एंगल है, सो इट नेवर बी मल्टीप्लाइड. सो 3 को हम आगे कर लेते हैं, साइन 2 u की जगह पे बच्चों क्या लिख दोगे 3x plus 2, so what you get 3 sin 6x
प्लस 4. सो दिस इज द डेरिवेटिव. एंड आप यहाँ बच्चों फॉर्मूला लिख दोगे क्या जो आपने यूज किया, साइन 2u, 2 sin u cos u. So this is the derivative of composite function. स्टूडेंट्स अभी तक मैंने सिर्फ दो ही टाइप के प्रॉब्लम बताए. पहला तो जो आपको होमवर्क दिया था जिसमें हमने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन का यूज किया, और दूसरा प्रॉब्लम था बच्चों कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव. सो we take two type of function, first two composite function and second one three composite function. दोनों का डेरिवेटिव मैंने कैसे निकाला है. आई होप you all understand how to find the derivative. Firstly we have to suppose initial function as a another variable और उस वेरिएबल को हम इनिशियल वेरिएबल के इक्वल करेंगे और फिर डेरिवेटिव निकाल लेंगे. चूंकि दो फंक्शन का कंपोजिशन है इसलिए दो आए, यहाँ तीन फंक्शन का कंपोजिशन है इसलिए तीन डेरिवेटिव आए, और तीनों का समेशन हमें dy dx दिया. So students, firstly you note down, then we discuss another type of problem. So students, you see that question. First is, if fx equals to mod of cos x, then find f dash 3 pi by 4. And second one is, if y equals to under root 1 minus sin 2x upon 1 plus sin 2x, then show that dy dx plus sec square pi by 4 minus x equals to 0. अब इन दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे हम डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं, एंड आई होप कि अगर आप इसको समझ लोगे तो आप वो क्वेश्चंस आराम से कर लोगे. So firstly you see that question, solution of this question. First question, fx equals to mod of cos x. Students, firstly you have to know how the modulus is break. So students आपको पता होना चाहिए कि जब आप देख रहे हो ना 3 पाई बाई 4 पे आपको वैल्यू चाहिए. 3 पाई बाई 4 किस रेंज में आता है उसी के बेस पे ये cos का वैल्यू डिफरेंशिएट होगा. So firstly you know that if x belongs to pi by 2 to pi, देखो इसी के बीच में वैल्यूज आएंगी. अगर x पाई बाई 2 से पाई के बीच होता है बच्चों, तो आपको पता है कि जो मॉडुलस ऑफ cos x होगा वो निगेटिव cos x होगा. यानी इनके बीच में हर वैल्यूज पे ये मॉडुलस कैसी वैल्यू देगा, निगेटिव. इट मींस कि ये रेंज तो इन्हीं के बीच में है, सो हमारा फंक्शन इस बीच में डिफाइंड होना चाहिए. वो फंक्शन ऐसा है, हम पुट कर दें बच्चों. सो fx क्या हो जाएगा, माइनस cos x. आपको चाहिए डेरिवेटिव, सो f डैश यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव निकालते हैं बच्चों. सो f डैश x क्या हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos, माइनस साइन, और माइनस आगे एक रखा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन x. सो व्हाट यू गेट, f डैश 3 पाई बाई 4. सो f डैश 3 पाई बाई 4 हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 4. एंड स्टूडेंट साइन 3 पाई बाई 4 क्या होता है, तो इसको तोड़ लो बच्चों, पाई माइनस पाई बाई 4. सो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी साइन पाई बाई 4. साइन पाई बाई 4 क्या होगा, 1 बाई रूट 2. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. आपको बस ये पता करना था कि मॉडुलस का ब्रेक कैसे होगा. मॉडुलस का ब्रेक समझ गए, आप इसका डेरिवेटिव निकाल लिए. सेकंड वन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन. फंक्शन दिया है, गिवन दैट y equals to under root 1 minus sin 2x upon 1 plus sin 2x. So firstly you have to break the sign.
स्टूडेंट्स यहाँ कुछ हम वो काम करेंगे जो हमें 11th में कर रखा है। 11th में आपने किया होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम इस वन को जानेंगे कि वन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं। सो यू नो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो यू हैव टू यूज, एंड ये फॉर्मूला भी आपने देखा साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस x। इस तरीके से हम जो पाएंगे उससे ये रूट हट जाएगा बच्चों। सो फर्स्टली we write like that cos square x plus sin square x, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, माइनस 2 sin x cos x अपॉन cos square x plus sin square x plus 2 sin x cos x। क्या ये समझ में आ रहा है? वन की जगह पे ये लिखा और साइन 2x की जगह पे ये लिखा। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बच्चों आप कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? 1, एंड साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सो स्टूडेंट से क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब रूट है बच्चों तो स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। सो यू गेट दिस। अब बच्चों ये तो आपका y हो गया। अब ध्यान से इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से करना है। आप यहाँ से अपने प्रॉब्लम को लेंथी भी बना सकते हो और इजी भी बना सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। स्टूडेंट्स हम प्रूफ की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इस कंडीशन को। आपको सेक स्क्वायर दिया बच्चों, डेरिवेटिव निकालने पे सेक स्क्वायर मिल रहा है। किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स? tan का। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर देता है, यानी इसको हमको tan में चेंज करना है बच्चों। अगर हम यहाँ cos कॉमन लें तो ऊपर मिलेगा 1 माइनस, यहाँ साइन है तो साइन बाई कॉस हो जाएगा बच्चों। नीचे भी cos कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन बाई कॉस हो जाएगा। अब बच्चों cos कट जाएगा और आपको मिलेगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अभी भी बच्चों हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना होगा। 1 को क्या लिख सकते हो? tan पाई बाई 4, और यहाँ है बच्चों tan x अपॉन, इसको लिख सकते हो 1 प्लस, क्या 1 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है बच्चों? सी दैट tan पाई बाई 4 1, सो 1 इंटू tan, नो चेंज। बट ये एक फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b, देखो कितना आसान हो गया बच्चों। दिस क्वेश्चन बिकम सो इजी। tan में आ गया, अब डेरिवेटिव आप निकाल लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो इट बिकम्स dy dx एंड tan, डेरिवेटिव ऑफ tan sec स्क्वायर, स्टूडेंट sec स्क्वायर, बट इट इज कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि आप tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x जानते हो। दिस इज नॉट x, दिस इज pi by 4 minus x. So firstly you have to write pi by 4 minus x, and then you have to differentiate pi by 4 minus x, इसको भी differentiate आपको करना पड़ेगा। So you get sec square pi by 4 minus x, and pi by 4 का स्टूडेंट्स 0, एंड x का क्या होगा? -1, क्योंकि आगे माइनस है। So what you get? Minus sec square pi by 4 minus x. This is dy dx. अब माइनस को इधर लाओगे तो प्लस, so you get dy dx plus sec square pi by 4 minus x, और जब इधर ले गए तो इधर क्या बचे बच्चों? 0. So this is the solution of this question. बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं?
बच्चों इस क्वेश्चन को आप 3 पेज में भी कर सकते हो, 2 पेज में भी कर सकते हो और 5 से 6 लाइन में भी कर सकते हो। या आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन कितना कॉम्पैक्ट तरीके से करते हो। यहाँ हम यही हमारा चेंज होता सोल्यूशन का जो प्रोसेस है। सो हमने प्रूफ को देखते हुए यहाँ चेंजेस किए और हमको सोल्यूशन मिल गया। कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा था, उस पर ये 2 प्रॉब्लम रहे, 1-2 प्रॉब्लम और भी मैंने कराए थे। अब बच्चों मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, सो फर्स्टली यू नोट डाउन, देन कॉपी द होमवर्क एंड डू दैट वर्क। सो फर्स्टली you do it. So students, this is the homework question. First is find differentiate sin 5x and cos 7x with respect to x. Second, differentiate 2 under root cot x square with respect to x. Third one, find the derivative of fx equals to mod of cos x minus sin x, and after finding the derivative, find f dash pi by 6. And fourth one, if y equals to sine under root sine root x, then find dy dx. एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत मैंने इसको सर्च किया था इस क्वेश्चन को, तब जाके इतने अच्छे क्वेश्चंस मिले बच्चों। ये क्वेश्चन 3 टाइम्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। सो आप इसको जरूर ट्राई करना। डिस्कस द continuity and differentiability of function fx equals to mod of x plus mod of x minus 1 in the interval -1, 2. So this is the homework question, and next lecture we discuss about implicit and explicit function, and we see that how to find the derivative of implicit and explicit function. So let us start with that concept in next class, and you do the homework question. Okay students, thank you, have a nice day.